تیسرا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ امید ہے کہ تجوید کے قواعد کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اور تجوید کے مطابق قرآن شریف پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ وقالت، قاف کو پور پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر تا ساکن اور طا مشدد، ساکن اور مشدد حرف ایک ساتھ ہے تو تا ساکن والے حرف کو نہیں پڑھتے ہیں، مشدد والے حرف کو پڑھتے ہیں، تو لام کو طا سے ملا کر پڑھیں گے اور طا کو پور پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور یہاں پر مد متصل ہے، یہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل ہے تو مد متصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ طائفتم، یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد حروف یومن میں سے من ہے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ من اہلل، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ اہل الکتاب آمنوا بالذی، یہاں پر آمنو، یہاں پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنو، یہاں پر واو مدہ ہے تو واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ بالذی، ذال کو باریک پڑھتے ہیں، اور یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہے، مد منفصل کو بھی 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے۔ انزلہ، یہاں پر نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے تو نون میں اخفا کریں گے۔ علی الذین، یہاں پر دیکھیے یا علی کے اوپر جو یا ہے، یا کو نہیں پڑھا جا رہا ہے، لام کو لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ لذینہ، ذال کو باریک پڑھیں گے، کہیں پر بھی ذال ہو تو اسے باریک پڑھیں گے اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یا مدہ ہے۔ آمینو، یہاں پر بھی ایک کھڑا زبر ہے حمزہ کے اوپر تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے آمینو میں تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وجہن، یہاں پر جیم میں قلقلہ ہوگا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کے اوپر جزم ہے۔ وجہن نہاری، نون مشدد ہے، نون میں غنہ ہوگا، اور یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ وکفرو، یہاں پر را کو پور پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، اور یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا، مد منفصل کو بھی 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے۔ آخرت، خرہ، یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور خا کو پور پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو بھی پور پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لعلہم یرجعون، یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد یا ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ یرجعون، را ساکنہ سے پہلے یہاں پر زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے۔ جعون، یہاں پر دیکھیے وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو یہ سکون یہ عارضی ہے، اسے سکون عارضی کہتے ہیں، وقفی کہتے ہیں، وقف کی وجہ سے یہ سکون آ رہا ہے اور یہ حرف مد کے بعد آ رہا ہے۔ تو جب حرف مد، یہ واو ہے حرف مد کے بعد جب سکون وقف کی وجہ سے آئے تو اس وقت مد عارض وقفی ہوتا ہے، اور اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط اور پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ پھر سے دیکھ لیجئے۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ یہاں پر
देखिए आयत है और आयत के ऊपर जीम है, फिर उसके ऊपर सले है, यहाँ पर 3 अलामत है। तो सबसे ऊपर जो अलामत होती है उस पर अमल किया जाता है, और यहाँ पर सबसे ऊपर सले है तो यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए, यहाँ पर ऐसे मिलाकर पढ़ना चाहिए। लेकिन आयत लंबी थी तो इस वजह से हम यहाँ पर वक्फ कर गए, तो वक्फ भी कर सकते हैं अगर लंबी आयत हो तो। देखिए वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, वला तुमिनू, देखिए यहाँ पर हमज़ा वाव की शक्ल में है और हमज़ा के ऊपर जज़्म है, तो ये हमज़ा साकिना है और हमज़ा साकिना को झटका लगाकर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर झटका लगाकर पढ़ेंगे। मीनू यहाँ पर देखिए हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलीमा में है तो मद्दे मुनफसिल होगा। मद्दे मुनफसिल को 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं और 1 अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ना जायज़ है। लिमा व तबिया, यहाँ पर नून साकिन के बाद देखिए ता है हुरूफ इख्फा में से, तो नून में इख्फा होगा। दीनकुम, दी को खींचेंगे 1 अलिफ के बराबर, या मद्दा है, यहाँ पर वक्फ अलामत है, तो वक्फ मुतलक की अलामत है, यहाँ पर वक्फ करेंगे। वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन यु'ता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम। देखिए कुल कॉफ को पूर पढ़ेंगे, कॉफ रूफ मुस्तालिया में से है। इन्ना नून मुशद्दद है, नून में गुन्ना करेंगे। हुदा यहाँ पर या को नहीं पढ़ा जाएगा, या में कोई हरकत नहीं है। यहाँ पर भी हुदा में या है, इस या को नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर इस या में कोई हरकत नहीं है। दाल को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और अल्लाह का लाम को पूर पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह का लाम से पहले दाल के ऊपर ज़बर है तो पूर पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए लाम अलिफ आयत के बीच में है तो यहाँ पर ना ठहरना बेहतर होता है। आई युता, यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ यूमिन में से या है तो नून को या से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको इदगाम नाकिस कहते हैं। और यहाँ पर देखिए हमज़ा साकिना है तो इसको भी झटका लगाकर पढ़ेंगे। और यहाँ पर हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलिमा में है तो मद्दे मुनफसिल होगा। और यहाँ पर दुम, देखिए तनवीन के बाद हुरूफ यूमिन में से मीम है तो यहाँ पर भी इदगाम नाकिस होगा। मिस्ला सा को बारीक पढ़ेंगे। मा ऊती तुम, यहाँ पर भी हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलीमा में है, मद्दे मुनफसिल होगा। ऊती तुम, यहाँ पर वाव मद्दा है और यहाँ पर या मद्दा है, दोनों को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ पर मीम साकिन के बाद हमज़ा है तो यहाँ पर मद्दे इजहार शफवी होगा, यहाँ पर जल्दी पढ़ेंगे मीम को, जैसे हम तुम की मीम को पढ़ते हैं। औ युहाज्जुकुम, यहाँ पर हरफ मद के बाद वाले हरफ पर तशदीद है, मुशद्दद है, तो इसे मद्दे लाजिम कहते हैं। मद्दे लाजिम को 3-4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। कुम, यहाँ पर मीम साकिन के बाद आइन है तो यहाँ पर भी मीम में इजहार शफवी होगा। ईदा, यहाँ पर नून साकिन के बाद दाल हुरूफ इख्फा में से तो नून में इख्फा होगा। रब्बिकुम, रा को पूर पढ़ेंगे, रा के ऊपर ज़बर है और यहाँ पर वक्फ करेंगे, तो वक्फ मुतलक की अलामत है। फिर से देख लीजिए। कुल इन्नल हुदल्लाहि अन यु'ता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम। कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह। कुल कॉफ को पूर पढ़ेंगे, कॉफ रूफ मुस्तालिया में से है, नून मुशद्दद है, नून में गुन्ना करेंगे। फ़ज़्ल ज़ाद को पूर पढ़ेंगे, ज़ाद हुरूफ मुस्तालिया में से है। बियदिल्लाह, यहाँ पर अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले ज़ेर है। जीम यहाँ पर अलामत जो है, यहाँ पर ठहरना बेहतर है और ना ठहरना भी जायज़ है, तो यहाँ पर हम ठहर जाते हैं। कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह यु'तीहि मन यशा। यू, यहाँ पर देखिए हमज़ा साकिना है तो झटका लगाकर पढ़ेंगे और ती को खींचेंगे, या मद्दा है यहाँ पर। मई, नून साकिन के बाद यहाँ पर हुरूफ यूमिन में से या है तो मद्दे यहाँ पर इदगाम नाकिस होगा। यशा, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा।
हर्फ मद के बाद हमजा इसी कलीमा में है, मद्द मुत्तसिल होगा। और यहाँ पर ता वक्फ मुतलक की अलामत है, वक्फ करेंगे। युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीमुन यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशा। वल्लाहु अल्लाह कलाम को पूर पढ़ेंगे, अल्लाह कलाम से पहले ज़बर है। वासिउन यहाँ पर अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ पर आइन के ऊपर दो पेश की तनवीन है, तनवीन के बाद आइन हुरूफ हल्की में से है तो तनवीन में इजहार होगा, तनवीन को ज़ाहिर करके जल्द पढ़ेंगे। अलीमुन या मद्दा है, यहाँ पर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए आयत है, आयत के ऊपर जीम है और उसके ऊपर लाम अलिफ है। सबसे ऊपर जो अलामत है लाम अलिफ है, यहाँ पर ना ठहरना बेहतर होता है और ऐसे ठहर भी सकते हैं। जब लाम अलिफ आयत के ऊपर हो तो ठहर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिलाकर पढ़ना ही ज़्यादा बेहतर है। तो हमने मिलाकर पढ़ा। तो यहाँ पर तनवीन के बाद या है हुरूफ यूमिन में से, यहाँ पर भी इदगाम नाक़िस होगा। यख्तस्सु खौ को और सौद को दोनों को पूर पढ़ेंगे, दोनों हुरूफ मुस्तालिया में से है। बिरहमतिही रौ को पूर पढ़ेंगे, रौ के ऊपर ज़बर है। मैं यशा यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ यूमिन में से या है तो इदगाम नाक़िस होगा, यशा में मद्द मुत्तसिल होगा। वल्लाहु वासिउन अलीमुन यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अल्लाह कलाम को पुर पढ़ेंगे, अल्लाह कलाम से पहले ज़बर है, ज़ाल को बारीक पढ़ेंगे और ये वाव को नहीं पढ़ा जाएगा, इस पर कोई हरकत नहीं है। ज़ाल को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। फ़ज़ल ज़ौद को पुर पढ़ेंगे, ज़ौद हुरूफ मुस्तालिया में से है। लिल अज़ीम ज़ौ को भी पुर पढ़ेंगे, हुरूफ मुस्तालिया में से है। और या मद्दा है, यहाँ पर या मद्दा है और उसके बाद यहाँ पर वक्फ़ कर रहे हैं तो मीम की ज़ेर जो है वो सुकून से बदल जा रहा है, तो हरफ मद के बाद सुकून आरजी है, इस वजह से यहाँ पर मद्द आरिज वक्फ़ी होगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम।